दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करना चाहते हैं कल लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के द्वारा एक डेटा पेश किया गया कि वोट में धांधली को लेकर के, और उसका इन्वेस्टिगेशन एक हमारे न्यूज़ चैनल है उन्हें स्टिंग ऑपरेशन किया है और उनके द्वारा इंडिया टुडे के द्वारा ये जा कर के ग्राउंड जीरो पर जाकर रिपोर्टिंग की है और उसकी सच्चाई जानने की कोशिश की है। तो चलिए मैं उस वीडियो को दिखाता हूँ, फिर आगे उस पर मैं बात करता हूँ। India Today visited the address at the center of this political storm, and what we found raises serious questions. The house, which is barely 10 to 15 square feet, is currently occupied by a food delivery agent from West Bengal who moved in just a month ago. He claims he has no link to the alleged 80 voters and has denied knowing anyone on the list. आप यहाँ पे बाड़े में रहते हो? हाँ, रेंट। किसका घर है ये? उस सर का नाम जयराम रेड्डी। जयराम रेड्डी है। कौन है वो? किस पार्टी का है? वो तो पता नहीं सर। मैं इधर 1 महीना आया सर। हाँ। इधर मैं 1 महीना आया, ठीक है। मैं ज्यादा दिन। कौन था, कुछ पता था? वो ओनर सर ही बता सकते। The house is owned by Jairam Reddy, who Dipankar claims has ties with the BJP. When contacted by India Today, Reddy initially confirmed being affiliated with the party, but later backtracked. ನೀವೇನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್, ಜಯರಾಮ್ ಸರ್? ಸುಮ್ನೆ ನಾವು ಪಾರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಮೆಂಬರ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬೆಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ವರ್ಕರ ಹೆಂಗೆ ಏನ್ ಕತೆ? ಇಲ್ಲ ಅದೇನು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ನೀವು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ. Shockingly, Reddy also admitted that he never informed Election Commission officials about the anomaly, despite knowing that most of the registered voters no longer reside there. ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ 10-15 ವರ್ಷ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಓಟಿರೋರೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅಲರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ. ಇದ್ರು ಅದೇ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತವರೆಗೂ 80 ಜನ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ 80 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅವರು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಊರ್ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ವೋಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ ಊರಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒರಿಸ್ಸಾ, ಬಿಹಾರ, ನಮ್ಮ ಮಂಡ್ಯದ ಕಡೆಯವರು. Faced with tough questions, Jairam Reddy assured that he would alert election authorities about the potential voter list discrepancies. While Jairam Reddy deflects responsibility, the Congress insists that its voter list fraud was engineered to benefit the BJP. For now, what's clear is this: Rahul Gandhi's claims have found some ground. It is the house of Dipankar. He says that he is living here from past 1 month, and it is a very small house where he can accommodate only 1 or 2 people, which has a hall and a kitchen and a bathroom, and it doesn't even have a bedroom. And as per the allegations made by Rahul Gandhi, he said that around 80 people have enrolled for voter list from this particular house number 35, here in Munreddy Garden near Bellanduru. With video journalist Madhu Sagaraj reporting for India Today, Bengaluru. आप लोगों ने जो वीडियो देखा अभी इंडिया टुडे का, उस पर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग कमेंट में अपनी राय दें। और मैं बताना चाहता हूँ, अभी बिहार में SIR का काम चल रहा है, जो हम लोग पुनरीक्षण का कार्य बोलते थे, वो लगभग कार्य पूरा होने वाला है अब। और उसमें लाखों वोटरों का नाम काटा गया है। ये विपक्ष की ओर से आरोप लगाया गया है, जिसका मामला अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उस पर फैसला आना बाकी है अभी। और जिस हिसाब से कल राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें बताया कि किस तरह से वोटों की चोरी हो रही है, किस तरह से धांधली हो रही है, वो आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और उस पर कई तरह की चर्चाएँ हो रही है कि कोई, जैसे हम एक वोटर हैं तो हमारा वोटर ID कार्ड महाराष्ट्र में भी है, झारखंड में भी है और तेलंगाना में भी है, और इस तरह से हम सभी राज्यों में हमारे अलग अलग नाम से अलग अलग एक ही व्यक्ति 3 जगह 4 जगह वोट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये गलत है। चुनाव आयोग को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। अगर
नेता प्रतिपक्ष आपको अगर कोई आरोप लगा रहे हैं तो उस पर आपको गंभीरता से लेना चाहिए और उसकी जांच करना चाहिए। जांच करके और चुनाव आयोग को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए। अब क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वस्थ संस्था है, उनको निष्पक्ष वोट कराने के लिए उनको संविधान के द्वारा उससे शक्ति प्रदान किया गया है और चुनाव आयोग पे बहुत ही आस्था है। अगर चुनाव आयोग एक वोट का भी इधर उधर होता है तो उसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है, क्योंकि लोगों के पास कुछ नहीं है, सिर्फ एक वोट के अलावा कुछ नहीं है। वोट एक ऐसा अधिकार है जो कि गरीब अमीर सबके लिए बराबर है और इसमें अब सत्ता जाने की डर है या इसमें भाजपा की हार के कारण है। बहुत सारे इसमें तरह तरह की लोग चर्चाएं हो रही है, समाज में तरह तरह की बात पर तरह तरह के मुद्दे उठ रहे हैं। अब इस पे देखना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। और बहुत सारे पत्रकारों ने जाके रिपोर्टिंग किया है, बीएलओ घर नहीं जा रहे हैं, और अधिकारियों के द्वारा बिहार में बताया गया था कि आपको 2 फॉर्म मिलेगा, एक फॉर्म भर के बीएलओ लेके जाएंगे और दूसरा फॉर्म आपको मिलेगा, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। बिहार में बहुत सारे कंप्लेन आए और बहुत वोटरों का भी नाम कट गया, लाखों के तादाद में वोटरों का नाम कट गया। अब वो उसको भाजपा की तरफ से बोलता है वो बांग्लादेशी है, वो घुसपैठिए हैं। अब आगे देखिए उस पर क्या होता है, आगे उसका क्या नतीजा होता है। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है, अगर आप उस अपने पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देखेंगे तो उसमें 3-4 सवाल खड़ा होते हैं जो कि उसका जवाब देश की जनता को, चुनाव आयोग को सामने आके देना चाहिए। अगर कोई भी वोटर 2 जगह 3 जगह उसका नाम है तो फिर वो नाम क्यों है, वो डिलीट क्यों नहीं हुआ। और जब पुनरीक्षण का कार्यक्रम जब चलता है, जब वोट जोड़ने की या फिर काटने की जब चुनाव से पहले प्रक्रिया होती है तो उसमें बीएलओ हैं, बीएलए हैं, उस सब का सहयोग जब सरकार क्यों नहीं लेती है। जो वहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट रहते हैं, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या इंडिया गठबंधन की हो या किसी भी रूलिंग पार्टी का हो, तो उस पर उसको संज्ञान लेना चाहिए और संज्ञान ले करके उस पर जब चुनाव से पहले पुनरीक्षण का कार्यक्रम होता है उस समय उसको करना चाहिए। अभी हमारे देश में बहुत सारी घटनाएं चल रही है, उधर टैरिफ वार चल रहा है, फिर आप इधर चुनाव को लेकर के चल रहा है। तो तरह तरह के देश में बहुत सारे मुद्दे हैं जो अभी निकल के आगे आ रहे हैं। अब राहुल गांधी को एक पत्र लिखा है चुनाव आयोग ने, एक एफिडेविट दिया है, उसमें उसको बताया गया कि आप हमें इस पर साइन करें। लेकिन राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उससे साफ लगता है कि वो उस पर साइन नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। ये कई पत्रकारों का, कई विशेष जानकारों का मानना है कि अगर आप अगर एक वोट की भी गड़बड़ी होती है तो वो जिम्मेदारी आपकी है। सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा भारत है। इस लोकतंत्र में सभी को एक समान अधिकार दिया गया है संविधान में, वो है वोट देने का अधिकार। चाहे आप कितना भी गरीब हो, कितना भी अमीर हो, एक वोट आपके लिए काफ़ी है और वो सबके लिए सामान्य है। तो आप इस पर और भी कोई अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।